Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. idea Am I audible? about the Yes, shape ma'am. and location Okay. So today we're going to discuss about urine urobilinogen analysis. Okay. This is a revision class. You have already studied about urobilinogen, right? So now, can anyone tell me what is urobilinogen? You have already completed this topic, no? Yes or no? Am I audible? Yes, ma'am. तो क्या है urobilinogen क्या है? Don't know. Okay, fine. For analysis of urobilinogen, normally we do Early's test. Okay, that means the name of the method is Early's method. So now, before analysis, you have to know about urobilinogen, right? So one thing remember, in case of urobilinogen, in normal individual also, a trace amount of urobilinogen present in the urine. Okay, so urobilinogen is nothing else. It is a one type of pigment which is produced by the bacterial decomposition. Okay, of the bilirubin in the intestine. जो intestine में bilirubin होता है वो bacterial decomposition से एक pigment produce होता है. That pigment is known as urobilinogen. And from the intestine it is secreted in the urine. This much only. Okay, it is a one type of pigment which is produced by bacterial decomposition of bilirubin in the intestine. इंटेस्टाइन में जो बिलीरुबिन होगा उसको बैक्टीरिया जितना भी होता है वहां पे वो ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है, तो वहां पे जो डिकम्पोजिशन होके एक पिगमेंट प्रोड्यूस होगा. दैट पिगमेंट इज नोन एज यूरोबिलिनोजन एंड आफ्टर दैट इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. तो नॉर्मली इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल ऑल्सो ए ट्रेस अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट. ठीक है, नॉर्मली भी नॉर्मल इंडिविजुअल में भी एक स्मॉल अमाउंट का यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है. दैट इज नॉर्मल. ओके, so now with the help of early stage we have to check the increased amount of urobilinogen present or not. See, normally भी present होता है, that must you know. Okay, तो अभी हम लोग को ये देखना है कि increase amount का urobilinogen present है कि नहीं उस sample में. So increase amount of urobilinogen indicate an increased production of bilirubin. ठीक है, these all are related to each other. The urobilinogen nothing else. It is a one type of pigment which is produced by bacterial decomposition of bilirubin in the intestine. ठीक है, from the intestine it is excreted in the urine. Or one important thing in case of urobilinogen, in normal individual also we found small amount of urobilinogen. So that is also a normal. So now we have to check the increased amount of urobilinogen present or not. If we get increased amount of urobilinogen in the sample, that means it indicate the increased production of bilirubin. Why? Because bilirubin से हम लोगों को urobilinogen मिलता है. ठीक है. Now function of urobilinogen. That means what is the function of urobilinogen? Urobilinogen क्या काम करता है? Okay. So urobilinogen converted to the pigment that is known as urobilin, which gives yellow color to urine. I think this much you know because we in urine analysis we have discussed about the color of the urine. There are three pigments. Do you remember that one? There are three pigments in urine and because of that we get our pale color, pale yellow color. Do you remember that one? The name of the pigment? You got my point? There are three pigments, no? जिसके वजह से हम लोगों को यूरिन में येलो कलर मिलता है, पेल येलो कलर मिलता है, या भूल गए सब कुछ? अमर, अमर, can you hear me? Am I audible?
ma'am. Then why didn't you reply? There are three pigments. Because of that, we get our pale yellow color in urine. Do you remember that one? ऐसा क्या हुआ? मैं एक्सप्लेन करके जा रही हूँ, तुम लोग सब कुछ भूल के जा रहे हो. ऐसा तो नहीं होगा ना? ठीक है, ठीक से देख लो एक बार, ठीक है? तो urobilinogen converted to a yellow pigment that is known as urobilin, and because of this urobilin we get our pale yellow color in urine. ठीक है? And that is all about urine. Next, one important function is there also, like in case of stool, in case of stool, the urobilin which is present in the intestine is converted to brown starcobilin. Just remember, जो यूरोबिलिन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होके क्या प्रोड्यूस करता है? ब्राउन स्टार्कोबिलिन. दैट मीन्स द कलर ऑफ द स्टार्कोबिलिन इज ब्राउन, and this sarcobilin gives the feces their characteristic color. That means with the help of sarcobilin, feces get their color. तो feces का कलर क्या है पता है? लाइट ब्राउन और ब्राउन कलर. तो ये स्टार्कोबिलिन एक पिगमेंट है जिसका कलर ब्राउन है और उसी के वजह से स्टूल का कलर ब्राउन होता है. ठीक है? तो this is the function of the urobilin. In case of urine, urobilin converted to yellow pigment that is known as urobilin, and with the help of urobilin we get the pale yellow color in urine. And similarly, in case of stool, urobilin converted to a brown pigment that is known as starcobilin. And because of this starcobilin, we found brown color in case of stool or feces. Okay, that is the function of the urobilin. So now we're going to discuss about the Arlis reagent. For analysis of urobilinogen, normally we perform Arlis test. That means the name of the method is Arlis method. So here the principle is nothing else. The Arlis reagent contain one type of chemical that is known as p-dimethyl amino benzaldehyde. See, it is written here. This one. See. So Arlis reagent contain this chemical known as p-dimethyl amino benzaldehyde. Okay. So this p-dimethyl amino benzaldehyde reacts with the urobilinogen which is present in that sample and produce pink color. ठीक है? This much only. Arlis reagent में एक chemical होता है that is known as p-dimethyl amino benzaldehyde. और ये केमिकल रिएक्ट करता है जो यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है सैंपल में, तो उसके साथ रिएक्शन करके एक कलर प्रोड्यूस करता है दैट इज पिंक इन कलर. दैट इज नॉर्मल. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिंसिपल. जस्ट रिमेंबर एक केमिकल है, वो केमिकल यूरोबिलिनोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद कलर चेंज होता है वहां पे. तो नॉर्मली इन केस ऑफ यूरोबिलिनोजन वी गेट अ पिंक कलर. ओके, और फॉर सैंपल normally we use the fresh sample. ठीक है? बिकॉज क्या होता है स्टैंडिंग सैंपल में यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट होता है तो यूरोबिलिन. अगर ज्यादा टाइम रख दिया हम लोग सैंपल तो क्या होगा, जो यूरोबिलिनोजन वहां पे प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है यूरोबिलिन में, और हम लोगों को रूटीन टेस्ट में यूरोबिलिनोजन नहीं मिलता है. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू यूरोबिलिन. तो इसीलिए फॉर यूरोबिलिनोजन नॉर्मली वी यूज फ्रेशली वॉइडेड सैंपल. दैट मीन्स फ्रेश सैंपल. ठीक है? दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर sample. So now composition of the Arlis reagent. First, number one is hydrochloric acid, concentrated hydrochloric acid. Number two, that is p-dimethyl aminobenzidine. And number three, distilled water. This is the composition of your Arlis reagent. Hydrochloric acid, p-dimethyl aminobenzaldehyde, and lastly distilled water. These are the composition of your Arlis reagent. So now procedure. First, we have to take 5 ml of urine in a test tube. After that, we add Arlis reagent. Okay. Then we have to wait for 10 minutes. And after 10 minutes, we have to check the color. Okay. Then, so after 10 minutes, if we get cherry red color, okay,
after 10 minutes if we will get cherry red color, then that indicate the positive result. ठीक है, 10 मिनट वेट करने के बाद अगर हम लोग को चेरी रेड का सैंपल वहां पे मिलेगा तो हम लोग को ये पता चलेगा that means that is positive for the urobilinogen. Or after 10 minutes if we will get light pink color, okay, then also that indicate that that is normal for urobilinogen. That means the small amount of urobilinogen present in the sample. See, one thing remember in case of urobilinogen, in case of normal individual also a trace amount of or small amount of urobilinogen present. ठीक है, तो with the help of early test और in case of analysis of urobilinogen हम लोग को ये चेक करना है कि increase amount का यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है कि नहीं और उस सैंपल में यूरोबिलिनोजन है कि नहीं. से नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है. अगर किसी सैंपल में यूरोबिलिनोजन नहीं होता है, ठीक है, दैट मीन्स दैट इंडिकेट तुम लोगों का लीवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर किसी सैंपल में हम लोग को थोड़ा भी यूरोबिलिनोजन नहीं मिला, दैट मीन्स कलर चेंज नहीं हुआ वहां पे कुछ भी, दैट मीन्स दैट इंडिकेट लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है. ठीक है, because normally in case of normal individual we found small amount of urobilinogen. तो with the help of this method हम लोग ये चेक करेंगे whether it is present or not, और अगर present है तो increase है या normal है. ठीक है, because हम लोग को पता है normally भी urobilinogen present होता है, तो अगर वहां पे present है, normally present है या वहां पे increase number of urobilinogen है, और अगर हम लोग को कुछ भी कलर चेंज नहीं मिलता है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि लीवर ठीक से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है. ठीक है, लीवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली because little amount of urobilinogen found in normal individual also. तो after analysis if we will get cherry red color, that means it indicate वहां पे increase amount of urobilinogen है. तो हम लोग को ये रिजल्ट करना है, we have to report like that the increase in the sample increased urobilinogen is present. So if we get a pink color, light pink color, then we have to report like this, the normal urobilinogen present in the sample. ठीक है, so this is all about your urobilinogen. Now in clinical significance, like what condition में हम लोग urobilinogen test करते हैं, there are few examples like hemolytic anemia, liver cirrhosis, jaundice and poisoning. In these cases normally we check urobilinogen. ठीक है, in these cases normally we found increased amount of urobilinogen in urine. ठीक है, so this is all about your urobilinogen. If you have any question you can ask me now. So this is the picture. Okay, ये normal sample है, उसके साथ हम लोगों ने ये reagent add किया. If we get pink color, that means it is normal. That means a small amount of urobilinogen present in the sample, and we all know that is normal. So if we get this color, that means cherry red color, that means it indicate that वहाँ पे urobilinogen ज़्यादा है. That means we found increased amount of urobilinogen in that sample. And condition यहाँ पे लिखा हुआ है. तो these are some interpretation जो मैंने already बोला है क्या क्या हो सकता है, jaundice, then hemolytic anemia, poisoning, etc. Okay, so I'll give this PPT after the class. Then I will send a video also. In that video, no, clearly सब कुछ लिखा हुआ है. You can copy from the video also. So I'll give that one. Now, if you have any confusion, you can ask me. Is it clear for you? Is it clear for you? और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. Avinash. Yeah. Others? नेटवर्क तो ठीक ही है, सब लोग ब्लैंक क्यों है पता नहीं. हाँ, apa bisa dibosan मैम. तो यूरोबिलिनोजन क्या है ये तो पता है अभी. व्हाट इज यूरोबिलिनोजन? व्हाट इज पिगमेंट होते हैं यूरोबिलिनोजन? मैम, जो कि पिगमेंट होते हैं जो कि यूरिन में प्रेजेंट होते हैं.
जिसकी Okay. वजह से एम्बर येलो कलर होता है यूरिन का। Okay. ठीक है, तो इट इज वन टाइप ऑफ पिगमेंट ओनली। ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मैम लीवर सी इंटेस्टाइन में जो बिलीरुबिन होता है, ठीक है, उस बिलीरुबिन को बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक करता है, और डिकम्पोजिशन के बाद हम लोगों को एक कलर पिगमेंट मिलता है, दैट इज नोन एज यूरोबिलिनोजन। हम लोगों को बिलीरुबिन से ही मिलता है ये। ठीक है, अगर यूरोबिलिनोजन ज्यादा सैंपल में मिलेगा, दैट वी कैन से दैट वहां पे इंक्रीज अमाउंट का बिलीरुबिन भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज बिलीरुबिन से हम लोग को यूरोबिलिनोजन मिलता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ यूरोबिलिनोजन जो यूरिन में कलर होता है, पेल कलर, वो हम लोगों को मिलेगा, और इन केस ऑफ स्टूल जो ब्राउन कलर मिलता है वो मिलेगा। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ स्टूल यूरोबिलिनोजन कन्वर्टेड टू स्टार्कोबिलिन। ठीक है, डोंट forget, in case of stool this urobilinogen is converted to starcobilin, and because of this starcobilin जो यूरिन में स्टूल में ब्राउन कलर होता है वो मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, similarly in case of urine this urobilinogen converted to urobilin। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट यूरोबिलिन यूरिन का कलर पेल येलो होता है। सो प्लीज चेक योर नोट। ओके, यूरिन एनालिसिस में हम लोगों ने स्टडी किया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट। उस पिगमेंट की वजह से यूरिन का कलर पेल येलो होता है। यूरोबिलिन तो एक है, ठीक है, और वहां पे 2 पिगमेंट और है, यूरोक्रोम और यूरोएरिथ्रिन। ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोग को यूरिन में पेल कलर मिलता है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरोबिलिन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखना, नॉर्मल इंडिविजुअल में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है। अगर किसी पेशेंट में, किसी इंडिविजुअल में यूरोबिलिनोजन नहीं मिलता है, दैट मीन्स दैट इंडिकेट द लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, अगर लिवर ठीक से काम कर रहा है तो थोड़ा अमाउंट का यूरोबिलिनोजन नॉर्मल इंडिविजुअल में भी मिलेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 1.8 मिलीग्राम पर डी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉर्मल। नाउ जस्ट वेट, ओके। Okay, sorry. Okay, so now come to early stage. Okay, so for analysis जो method हम लोग use करेंगे, that is known as Early's method. So now principle is very simple. Early's reagent contain one type of chemical that is known as p-dimethyl amino benzaldehyde. Okay, if we if any sample contain urobilinogen, that means that urobilinogen react with this chemical, और react करने के बाद एक color change होगा, पिंक इन कलर होगा, दैट मीन्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन। अगर उस पिंक कलर से हम लोग को चेरी रेड कलर मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन, दैट मीन्स वी कैन से दैट वहां पे इंक्रीज अमाउंट का यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल का सैंपल लेके तुम लोग टेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? पिंक कलर का मिलेगा, बिकॉज वहां पे स्मॉल अमाउंट का ही यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। और किसी पेशेंट में हम लोग को चेरी रेड कलर का मिक्सचर मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन, देन हम लोग बोल सकते हैं वहां पे इंक्रीज अमाउंट का यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। ओके, तो नाउ कंपोजिशन, यहाँ पे अर्ली रिएक्शन का जो कंपोजिशन है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट रिएजन इज p dimethyl amino benzaldehyde, and lastly we have to mix with the distilled water. Okay, these are the composition of early reagent. Now for procedure, first we have to take sample. Okay. So first we have to take sample in a test tube. After that we have to add Ehrlich reagent. Okay. Then we have to mix properly. Then we have to wait for 10 minutes. तो 10 मिनट के बाद हम लोगों को कलर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो व्हाइट सरफेस में हम लोगों को कलर ऑब्जर्व करना है। तो आफ्टर 10 minutes if we get cherry red color, that means it indicate present positive for the urobilinogen, that means हम लोग रिपोर्ट करेंगे increased urobilinogen present in that sample. और after 10 minutes if we get
light pink color, then we have to report like this, like normal urobilinogen is present in that sample. Okay, अगर किसी पेशेंट में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज नेगेटिव फॉर यूरोबिलिनोजन, और वहाँ पे लीवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है. ठीक है, बिकॉज नॉर्मली भी यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है सैंपल में. तो मैंने ऑलरेडी बोला कितना अमाउंट का, अप्रोक्सीमेटली. ओके, अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 1.8 mg per dl. तो इतना अमाउंट का यूरोबिलिनोजन नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है. Procedure is very simple. Okay, first we have to take sample. After that we have to mix the reagent. Then हम लोगों को वेट करना है for 10 minutes. तो 10 minutes के बाद हम लोगों को कलर चेंज हुआ कि नहीं वो देखना है. अगर पिंक कलर का होता है दैट इज नॉर्मल, दैट मीन्स नॉर्मल अमाउंट का यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है इन द सैंपल. और चेरी रेड का कलर हम लोगों को मिलता है, दैट मीन्स वहाँ पे इंक्रीज अमाउंट का यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है. दिस मच ओनली. ओके, तो अगर इंक्रीज अमाउंट का यूरोबिलिनोजन हम लोग को मिलेगा देन वी कैन से दैट वहाँ पे बिलीरुबिन ज्यादा अमाउंट का है. उस सैंपल में, उस इंडिविजुअल में बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बिकॉज बिलीरुबिन से ही यूरोबिलिनोजन आता है. ठीक है, अगर बिलीरुबिन नॉर्मल है दैट मीन्स हम लोग को नॉर्मल कलर का ही कलर ही मिलेगा आफ्टर रिएक्शन. और अगर हम लोगों को कलर चेंज मिलता है, चेरी कलर मिलता है, देन वी कैन से दैट वहाँ पे बिलीरुबिन का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है. ठीक है, तो यूरोबिलिनोजन नथिंग एल्स, इट इज ए पिगमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द बिलीरुबिन इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में जो बिलीरुबिन होता है उसको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करके डिकम्पोजिश करके वहाँ पे जो पिगमेंट मिलेगा हम लोगों को उसी का नाम है यूरोबिलिनोजन. सो ओके, नाउ इज इट क्लियर? See, principal procedure is very simple. Principal में कुछ भी नहीं है. आयरिश रेजन में केमिकल है, उस केमिकल के साथ अगर हम किसी भी सैंपल हम लोग मिक्स करेंगे, अगर उस सैंपल में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है तो कलर चेंज होगा. दिस मच ओनली. ओके, तो सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोसीजर हम लोग को फर्स्ट यूरिन लेना है सैंपल, दैट मीन्स देन इन दैट सैंपल वी हैव टू मिक्स आवर आयरिश रेजन, देन वी हैव टू वेट फॉर 10 minutes, and after 10 minutes we have to observe the color change. If we get the light pink color, that means it indicates that is normal for a यूरोबिलिनोजन. That means in that sample normal amount का यूरोबिलिनोजन present है. After 10 minutes, if we get the cherry red color, that means it indicate increased amount of यूरोबिलिनोजन present in that sample. Okay, this much only. Now it is clear for you? Is it clear for you? নাই হোৱা ভালছে মেম এতিয়ালৈকে. কোনটো point পোৱা নাই কোৱা? Procedure, principle or about यूरोबिलिनोजन? প্ৰিন্সিপালটো Principle and procedure is very easy. Just remember, principle कुछ भी नहीं है. Earliest reagent में एक chemical है. That chemical is known as p-dimethyl amino benzaldehyde. ठीक है, वो chemical अगर हम लोग सैंपल में ऐड करेंगे तो वहां पे एक रिएक्शन होगा. सैंपल में जितना भी यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है उसके साथ इस केमिकल का रिएक्शन होगा, और आफ्टर रिएक्शन जो हम लोगों को कलर चेंज मिलेगा उसी के हिसाब से हम लोग रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, तो नाउ आई थिंक तुम लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है. मैंने ऑलरेडी बोला नॉर्मल पेशेंट में भी होता है, सॉरी नॉर्मल इंडिविजुअल में भी यूरोबिलिनोजन होता है, फिर भी हम लोग को चेक करना है, वही वाला कंफ्यूजन ना. तो ये याद रखो, यूरोबिलिनोजन किसी मतलब हर इंसान में ही होता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है. ठीक है, थोड़ा अमाउंट का, ट्रेस अमाउंट का यूरोबिलिनोजन सब में ही होता है. सबका यूरिन में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है. तो हम लोगों को ये मैम देखना ये है. या यस, फंक्शन क्या होता है मैम, यूरोबिलिनोजिन का बॉडी में फंक्शन क्या होता है? वही तो बोला मैंने अभी. यूरोबिलिनोजन का फंक्शन ये है, दैट मींस इन केस ऑफ यूरिन, ठीक है, इन केस ऑफ यूरिन यूरोबिलिनोजन कन्वर्टेड टू येलो पिगमेंट दैट इज नोन एज यूरोबिलिन. यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है और ये यूरोबिलिन यूरिन में हम लोगों को कलर देता है, इसीलिए यूरिन का कलर पेल येलो है.
That is the function of urobilinogen. In case of urine, urobilinogen is converted to a yellow pigment that is known as urobilin, and because of this urobilin gives yellow color to urine. That's why normally जो urine का color होता है pale yellow होता है, ठीक है, because of the urobilinogen. Or in case of stool, urobilinogen converted to another pigment, brown pigment, that is known as stercobilin. Stercobilin, stercobilin. And this stercobilin gives the feces their characteristic color. That means we all know the normal color of the stool is what? Brown color. And because of this stercobilin, हम लोगों को वो brown color मिलता है. That is the function of the urobilinogen. तो इसीलिए urobilinogen सबके यूरिन में और स्टूल में होता है. तो हम लोग को यहाँ पे in some condition like liver cirrhosis, in case of jaundice, in case of hemolytic anemia, will get increased amount of urobilinogen in case of urine. हम लोग यहाँ पे यूरिन स्टडी कर रहे हैं ना, केमिकल एग्जामिनेशन यूरिन. तो in such cases like jaundice, liver cirrhosis, तो यहाँ पे increase amount का urobilinogen मिलेगा in urine. वही हम लोग को चेक करना है. This much only. Normally भी urobilinogen present होता है. यूरोबिलिजन के वजह से हम लोग को यूरिन में कलर और स्टूल में कलर मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना है कि यूरोबिलिनोजन नॉर्मल है या यहाँ पे इंक्रीज है. अगर यूरोबिलिनोजन इंक्रीज अमाउंट का मिलेगा तो बिलीरुबिन भी इंक्रीज अमाउंट का मिलेगा इन दैट सैंपल, बिकॉज बिलीरुबिन से ही यूरोबिलिनोजन प्रोड्यूस होता है. इट इज अ डिकम्पोजिशन फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन ओनली. ठीक है, इंटेस्टाइन में जितना भी बिलीरुबिन होता है उस बिलीरुबिन को बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करके वहां पे डिकम्पोजिस होता है. डिकम्पोजिस होने के बाद एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है. दैट पिगमेंट इज नोन एज यूरोबिलिनोजन. नाउ इट इज क्लियर. Yes, ma'am. या मतलब ये याद रखो, इतु মনত রাখিবা যে यूरोबिलिनोजन नॉर्मली प्रेजेंट থাকে. ठीक है सर, नॉर्मल इंडिविजुअल में भी यूरोबिलिनोजन होता है और यूरोबिलिनोजन की हेल्प से हम लोगों को यूरिन में कलर और स्टूल में कलर होता है. ठीक है, इन केस ऑफ यूरिन विल गेट यूरोबिलिन और इन केस ऑफ स्टूल यूरोबिलिनोजन कन्वर्टेड टू stercobilin, और with this stercobilin gives the color the feces, or यूरोबिलिन gives yellow, pale yellow color to urine. That is the function of the यूरोबिलिनोजन. तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेज हम लोग को ये चेक करना है नॉर्मल यूरोबिलिनोजन है या इंक्रीज अमाउंट का यूरोबिलिनोजन है. नॉर्मल होने से पिंक कलर मिलेगा आफ्टर 10 मिनट्स. रिएक्शन होने के बाद अगर पिंक कलर का हम लोग को सैंपल मिलता है वहाँ, मिक्सचर मिलता है वहां पे, दैट मीन्स दैट इंडिकेट नॉर्मल यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट इन दैट सैंपल. वी हैव टू रिपोर्ट लाइक दिस. ओके, तो आफ्टर 10 मिनट्स इफ विल गेट चेरी रेड कलर, ठीक है, then we have to report like increased amount of urobilinogen present in that sample. तो नॉर्मली एक यहाँ पे रेंज मैंने ऑलरेडी बोला, तो वो वेरी करेगा. बुक जितना भी बुक है लेबोरेटरी सब में सिमिलर तो नहीं होता है ना रेंज. तो नॉर्मली 0.1 to 1.8 मिलीग्राम पर DL यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है सब में. ठीक है, तो प्रोसीजर एकदम इजी है. सैंपल लेना है और हम लोगों को सिर्फ आयरलिच रिएजेंट ऐड करना है. तो आयरलिच रिएजेंट में जो केमिकल होगा वो केमिकल यूरोबिलिनोजन के साथ रिएक्शन फॉर्म करेंगे और आफ्टर रिएक्शन जो कलर चेंज होगा उसी के हिसाब से हम लोग को रिपोर्ट करना है. ठीक है, रिजल्ट देना है. दिस मच ओनली. आई विल सेंड यू द वीडियो, वहां पे सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. ठीक है, यूरोबिलिनोजन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, देन आयरलिच रिएजेंट का कंपोजिशन, देन प्रोसीजर, आफ्टर दैट रिजल्ट कैसे करना है हम लोगों को, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो. ठीक है, तो ये सब वीडियो में है, मैं क्लास के बाद तुम लोग को दे दूंगी. तो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, यूरोबिलिनोजन नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए यूरिन का कलर होता है, स्टूल का कलर होता है. ठीक है, तो इस टेस्ट में हम लोग को ये देखना है कि नॉर्मल यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है या ज्यादा अमाउंट का प्रेजेंट है. दिस मच ओनली हम लोग को देखना है. यहाँ पे कलर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, बिकॉज ये सिर्फ क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है, मैंने पहले ही बोल दिया था. तो दिस टेस्ट आर क्वालिटेटिव एनालिसिस ओनली. तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ ये देखना है नॉर्मल अमाउंट है या ज्यादा अमाउंट है.
अगर लाइट पिंक कलर का मिलेगा, पिंक कलर का फॉर्म मतलब मिक्सचर मिलेगा, दैट मीन्स दैट इज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट का यूरोबिलिनोजन है। अगर चेरी रेड कलर का मिक्सचर मिलेगा आफ्टर 10 मिनट्स, देन हम लोगों को ये पता चलेगा कि वहां पे इंक्रीज अमाउंट का यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। ठीक है, दिस मच ओनली।